Everyone, welcome to my channel. So now we will talk about a very important topic, that is translocation of solutes, and then we will be dealing with the uh, nitrogen metabolism and all. So let's start. So before starting the video, take some effort, take a moment to subscribe to our channel and become a family. Uh, and please share it with your friends, and do not forget to subscribe and like and sharing with your friends. Okay, let's start. Translocation of solutes. Mineral salts are translocated through xylem along with the ascending stream of water. So first we were not knowing that whether xylem is also carrying some mineral salts or not. We were sure that yes, xylem is transporting water, but what about mineral salts? So we have done an experiment called radioisotopes of mineral elements we have taken, and then we have taken xylem sap, and then after analysis of the xylem sap we found that xylem translocates mineral salts and water. So mineral salts are translocated through xylem along with the ascending stream of water. Along with the ascending stream of water, mineral salts are also translocated, which is pulled up through the plant by transpiration pull, which is pulled up through the plant by transpiration pull. Analysis of xylem sap shows the presence of mineral salts in it. Use of radioisotopes of mineral elements also substantiate the view that they are transported through the xylem. You have already discussed the movement of water in xylem in chapter 11. Now let's talk about 12.5, soil as reservoir of essential elements. So majority of the nutrients that are essential for growth and development of plants become available. So majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of rocks. So we know that soil is a reservoir of lots of mineral nutrients, but from where did all these mineral nutrients came into the soil? That is due to weathering and breaking down of rocks. By breaking the rocks, by weathering of rocks, it took several years and even centuries, and then after that a fertile soil is formed, which is full of nutrients. So majority of the nutrients that are essential for growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown of rocks. These processes enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. So because of this, the soil got and enriched with dissolved ions and inorganic salts. Since they are derived from the rock minerals, their role in plant nutrition is referred to as mineral nutrition. As they are derived from rock minerals, we can call it as mineral nutrition. Soil consists of a wide variety of substances. Soil not only supplies minerals but also harbors nitrogen fixing bacteria. Other microbes hold water. They hold water. Soil not only supplies mineral nutrients, but it also have bacteria, that is nitrogen fixing bacteria, and other microbes hold water. Soil holds water. Soil supplies air to the roots and act as matrix that stabilizes matrix and filling material that stabilizes the plant. So since deficiency of essential element affect the crop yield, there is often a need for supplying them through fertilizers. So we know that if any element is deficient, it will affect the crop yield. Instead of getting 1,000 tons of rice, we will get only just few 1-2 tons. So there is a huge decline in the yield. So because of this, we need to supply fertilizers. What are the fertilizers? Both the macronutrients, NPKs. Remember, like NPKs means nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur. NPKs. NPKs are macronutrients, and micronutrients are copper, zinc, iron, manganese. So you can FeMn, that is iron and manganese. You can say iron man. Copper and zinc, zid. Zinc means zid. So this is a mnemonic, simple mnemonic, that iron man Q zid kar raha hai. So that is micronutrient.
it is the component of fertilizers. जो fertilizers का component होते हैं and it applied as पर नीड अप्लाई करने से क्या होगा, अगर एज पर नीड अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ज़्यादा अप्लाई कर दे तो टॉक्सिसिटी, कम अप्लाई कर दे तो डेफिशिएंसी, सो अलग प्लांट अलग परेशान हो जाएगा, उसका ग्रोथ बढ़ने के अलावा कम हो जाएगा। तो हमें एज पर नीड फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है। So these are the components of fertilizers. Now let us talk about the high weightage topic, that is metabolism of nitrogen. This chapter is very important और इसमें का जो ये वाला part है, this is the most important part, that is metabolism of nitrogen. metabolism of nitrogen, ये जो last के 2 papers है, ये chapter का core है, this is the heart of the chapter. So nitrogen cycle, let's start. Apart from carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen is the most prevalent element in living organisms. Chon बोले तो carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Carbon, hydrogen, oxygen will get from carbon dioxide and water. So they are called non-mineral because there is no need to absorb from the soil. So carbon, hydrogen and oxygen, they are obtained from carbon dioxide and water. Nitrogen is the most prevalent element in living organisms. Nitrogen is a constituent of, nitrogen कहाँ कहाँ होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स में होता है, प्रोटीन्स में होता है, हार्मोन्स में होता है, क्लोरोफिल में होता है और वाइटामिन्स में भी होता है। तो अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन्स और हार्मोन्स, वाइटामिन्स, क्लोरोफिल। तो ये these all are what having nitrogen. Plants compete with microbes for the limited nitrogen. Plants compete with nitrogen for limited. So plants compete with microbes for the limited nitrogen that is available in soil. तो एक्चुअली प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है वो हाईली एनर्जेटिक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है, तो नहीं ले सकते प्लांट्स। तो प्लांट्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से तो नहीं ले सकती, लेकिन एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जो भी लिमिटेड सॉइल में प्रेजेंट है उसमें ना दोनों में कंपटीशन होता है, प्लांट्स और माइक्रोब्स दोनों में भी कंपटीशन होता है कि जितना भी अवेलेबल सॉइल में नाइट्रोजन है वो ले लिया जाए। बिकॉज नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल and all these. So this nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agricultural ecosystems. दोनों में भी नाइट्रोजन बहुत लिमिटिंग है। नाइट्रोजन exists as 2 nitrogen atoms joined by a very strong triple bond, covalent bond है and triple bond N. The process of conversion of nitrogen N2 to ammonia is termed as nitrogen fixation. The process of conversion of nitrogen N2 to ammonia is termed as nitrogen fixation. So the process of conversion of nitrogen N2 to ammonia is termed as nitrogen fixation. अगर आप N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन को क्या करना है, अमोनिया में कर देना है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है वहाँ पे NH3 लगा देना है। सो इन नेचर लाइटनिंग मतलब ड्यूरिंग रेन्स में क्या होता है कि दो क्लाउड एक दूसरे से टकराते हैं, फिर लाइटनिंग होती है, तो वो लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी से नाइट्रोजन के वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाते हैं। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। तो नाइट्रोजन N2 से क्या होता है, NO2 NO3 बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इंडस्ट्रियल कंबशंस, forest fires, automobile exhaust and power generating stations are also sources of atmospheric nitrogen oxides. Then industrial combustions, forest fires, automobile exhaust are also sources of atmospheric nitrogen oxides. So industrial combustion, forest fires, automobile exhaust, power generating stations, they also produce nitrogen oxides. Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. एक तो है कि N2 को
अमोनिया में कन्वर्ट कर दो, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दो, दिस इज अमोनिफिकेशन। सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइलाइजेस, मतलब अमोनिया ना वोलेटाइलाइजेस हो जाता है, मतलब लिक्विड से एक अमोनिया ना गैस में बन के हवा में चला जाता है एंड री एंटर्स द एटमॉस्फेयर बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप्स। लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ इट ज़्यादा से ज़्यादा किसमें उसके ऑक्साइड्स में, मतलब जैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सी हाँ, तो बैक्टीरिया की वजह से कन्वर्ट हो सकता है और वो बैक्टीरिया का नाम भी जानेंगे। जैसे 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलता है, उसके बाद 2 NO माइनस प्लस 2 H प्लस 2 वाटर बनता है। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने, पी लो, वाटर मीन्स पानी राइट। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने और 2 NO2 माइनस नाइट्राइट आयॉन्स बने, नाइट्राइट। अब ये नाइट्राइट ऑक्सीजन लेगा, अब नाइट्रोबैक्टर अब क्या होगा, NO3 माइनस बन जाएगा, 2 NO3 माइनस बन जाएगा, तो 2 NO3 माइनस बन जाएगा। तो अमोनिया 3 ऑक्सीजन लेगा, उसके बाद 2 NO2 माइनस बन जाएगा, 2 H प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ जो टू NO2 माइनस है, तो 2 NO2 माइनस है, जो 2 NO2 माइनस हैं वो क्या होगा, एक ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे, मतलब एक ऑक्सीजन से, एक हाफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। इसका मतलब 2 NO2 माइनस एक ऑक्सीजन से कंबाइन होके 2 NO3 माइनस बना लेंगे, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेट। तो नाइट्राइट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। तो जो भी अमोनिया है वो नाइट्रेट में फाइनली कन्वर्ट हो चुका है थ्रू नाइट्राइट। तो कौन कन्वर्ट करता है, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। सो नाइट्रोसोमोनास क्या है, ये इनिशियल स्टेप करती है, मतलब अमोनिया से नाइट्राइट तक कर देती है, मतलब NO2 माइनस तक। एंड और नाइट्रोकोकस भी नाइट्राइट तक कन्वर्ट कर सकता है। द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टर ही नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकता है, बाकी के अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोकोकस क्या कहते हैं, अमोनिया से नाइट्राइट कर देते हैं, और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट से नाइट्रेट। दिस स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो ये स्टेप को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, कि अमोनिया को आप नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोऑटोट्रोफ्स। दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रोफ्स। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रोफ्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी जो भी इसमें निकल रही है उसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके, द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो भी नाइट्रेट है वो प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, प्लांट्स अब्सॉर्ब करके लीव्स को सेंड करते हैं, लीव्स उसका खाना बना लेते हैं। सो इन लीव्स इट इज़ रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया। To form ammonia and finally forms amine group of amino acids. लीफ में क्या हुआ, लीफ में जो भी अमोनिया था वो अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स बन गया, अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन ना कुछ खराब बैक्टीरिया हैं, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन carried out by बैक्टीरिया सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये 2 बैक्टीरिया ना बहुत बदमाश है। ये क्या करती हैं, जो भी नाइट्रेट सॉइल में है, मतलब ना ये ना नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की दुश्मन है। वो लोग क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रेट में नाइट्रोजन बना देते हैं, नाइट्रेट से नाइट्रोजन बना देते हैं। तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस एंड सुडोमोनास। अब देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम देखें, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स, एटमॉस्फेरिक सॉइल्स और बायोमास। तो नाइट्रोजन साइकिल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज़ में, 3 चीज़ों में, एक है नाइट्रोजन पूल, एक एटमॉस्फेरिक सॉइल और एक है बायोमास। तो एक होता है नाइट्रोजन पूल, दूसरा एटमॉस्फेरिक सॉइल और तीसरा होता है बायोमास। तो ये 3
नाइट्रोजन पूल, एटमॉस्फेरिक सॉइल, बायोमास, इन तीनों में साइक्लिंग हो रही है, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है। जैसे एटमॉस्फेयर में खूब सारा नाइट्रोजन पड़ा है, उसको हमने अमोनिया में कैसे कन्वर्ट किया, दो तरीका है। एक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा लो, या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा लो। दूसरा है कि तुम इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कर लो, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कर दो। उसके बाद जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, कौन करा, नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोकोकस। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में किसने किया, नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद जो नाइट्रेट है वो प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, अपटेक करने के बाद अपटेक करने के बाद लीव्स में जाता है, लीव्स से अमोनिया बन जाता है, अमोनिया बनने के बाद फिर अमाइन ग्रुप की तरह अमाइनो एसिड्स में यूज़ हो जाता है। और एक बात है कि जो भी प्लांट बायोमास है या एनिमल बायोमास है उसका ब्रेक डाउन करके अमोनिया रिलीज़ किया जाता है, उससे हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तब जो भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है उसको निकाल के अमोनिया में कन्वर्ट करना, उसको अमोनिफिकेशन बोलता है, ठीक है, अमोनिफिकेशन बोलता है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया से अगेंस्ट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जिससे थायोबैसिलस उनका पूरा प्रोसेस उल्टा कर दिया। जो भी नाइट्रेट बना था, इन्होंने बनाया था ना नाइट्रेट, वो नाइट्रेट को उठा के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए, तो इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया हैं, थायोबैसिलस, सूडोमोनास नाम से पता है, बहुत थोड़ी है, सूडोमोनास, थायोबैसिलस, तो ये बैसिलस बैक्टीरिया से बच के रहना, थायोबैसिलस। तो इस तरह से अब हम जानते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो गाइज अब बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो there are very few organisms that can utilize the nitrogen in the form of nitrogen available abundantly in the air. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. The reduction of nitrogen into ammonia by living organisms is called biological nitrogen fixation. तो यहाँ पे होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन पड़ा है, लेकिन है प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स उसको यूटिलाइज कर सकता है, वो भी मोस्टली कौन है, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट्स, वो भी कुछ चुनिंदा खास प्रोकैरियोट्स ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Biological nitrogen fixation, the enzyme nitrogenase which is capable of nitrogen reduction is present exclusively in prokaryotes. Such microbes are called nitrogen fixers. नाइट्रोजन फिक्सर्स हम किसी भी बैक्टीरिया को रैंडमली नहीं बोल सकते, सिर्फ सर्टेन प्रोकैरियोट्स को ही बोल सकते हैं जिसके पास खास एंजाइम नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट है which is capable to convert, which is capable of nitrogen reduction प्रेजेंट इन एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। जो भी प्रोकैरियोट्स में एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है ना, दैट इज नाइट्रोजन रिडक्शन एंजाइम। तो नाइट्रोजिनेस एक ऐसे एंजाइम है सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। दूसरी बात कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स है कुड बी फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब सिम्बायोटिक, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग, सो सिम्बायोटिक इज नथिंग बट नाइट्रोजन फिक्सिंग। जो देखेंगे कि सिम्बायोटिक क्या होता है और फ्री लिविंग क्या होता है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स है कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल, फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, ये दो टाइप के हैं यूजुअली। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब माइक्रोब्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब माइक्रोब्स। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोब माइक्रोब्स हैं वो कहाँ से आए, मतलब जो भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग है वो क्या क्या है,
तो वो एरोबिक माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे हम पहले। एरोबिक माइक्रोब्स हैं अज़ोटोबैक्टर एंड बैजेनिक। इनको ना ऑक्सीजन चाहिए, ये एरोबिक है, इनको हवा चाहिए, हवा चाहिए, और ये फ्री लिविंग है। खुले खुले अकेले आसमान में उड़ते परिंदे हैं, को कोई रोक नहीं सकता। वाइल रोडोस्पिरुलम इज अनारोबिक एंड फ्री लिविंग। रोडोस्पिरुलम ठीक है, अनारोबिक है एंड फ्री लिविंग है, अनारोबिक एंड फ्री लिविंग। In addition to a number of cyanobacteria, so in addition a number of cyanobacteria which were also show and nitrogen fixing properties, such as in amoeba we मिलता है symbiotic nitrogen fixation, example anabina and nostoc. So number of number of cyanobacteria such as anabina and nostoc are also free living nitrogen fixers. Free living nitrogen fixers क्या है? anabina and nostoc. Whereas जो rhodospirillum है anaerobic है, whereas azotobacter and benzenic फ्री लिविंग है एंड ऑक्सीजन फ्री लिविंग है, इनके पास ऑक्सीजन भी चाहिए, मतलब ये एरोबिक है। अनारोबिक रोडोस्पिरुलम है ना, अनारोबिक रोडोस्पिरुलम। सो डायग्राम अच्छे से देख लेना। एंड फ्री लिविंग इज रोडोस्पिरुलम। और जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक, ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स एनाबिना एंड नॉस्टॉक। तो बहुत से बैक्टीरियाज हैं, लेकिन कुछ सर्टेन प्रोकैरियोट्स बोल सकते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जिसके पास नाइट्रोजनेस एंजाइम है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम नाम सुना होगा ना, लेग्यूम प्लांट्स में, फेबेसी में होती हैं, पल्सस में होती हैं। तो ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं और लेग्यूम प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, ठीक है। और एक्टिनोमाइसिड्स, एक्टिनोमाइसिड्स जैसे कि फ्रैंकिया, रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एनलेस, मायरिका, कैशेरिना, तो कैम बोल के याद रख सकते हो। तो लेग्यूमिनस में राइजोबियम। अब लोग नॉन लेग्यूमिनस रो रहे थे तो फ्रैंकिया बोला ठीक है मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या है? फ्रैंकिया, ठीक है। तो ये फिलामेंटस है, बैक्टीरियम है। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या हैं? कैम प्लांट्स, दैट इज कैशेरिना, एलनेस, मायरिका, कैशेरिना, एलनेस, मायरिका। Cyanobacteria, anabina, nostoc. Lichens, host fungi, some ascomycetes and basidiomycetes, anabina, nostoc. अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उससे पहले एक और बात है, भूल रही थी मैं कि जो एनाबिना है उसके एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसको बोलते हैं साइकाडाइकम। सो ये सर्टेन कोरलॉइड रूट्स होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स, साइकस, उसमें होती हैं ये। कौन? एनाबिना, नोस्टॉक के पर्टिकुलर स्पीसीज। एनाबिना अजोले, सिम्बायोटिक विद लीव्स ऑफ एन एक्वाटिक फन अजोला। तो एनाबिना किसके साथ है? अजोला के साथ। अजोला राइस फील्ड्स में दिखते हैं आपको। तो ये फर्न है, ये फर्न है अजोला, तो उसमें ना नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम ये एनाबिना कर देता है। तो एनाबिना का एक स्पीसीज है साइकाडाइकम और नोस्टा का है पंक्टिफॉर्मिस। सो ये दो स्पीसीज हैं जो कोरलॉइड रूट्स जैसे साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। Now let's talk about symbiotic nitrogen fixation.
Several types of symbiotic biological nitrogen fixation associated are known. The most prominent among them is the legume bacteria relationship. Species of rod-shaped rhizobium has such relationship with the roots of several legumes such as alfalfa, sweet clover, sweet pea, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, etc. So जो भी हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत टाइप्स के होते हैं. मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग दम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप. लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है. जो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है दैट इज लेग्यूम बैक्टीरिया स्पीसीज ऑफ रॉड एंड राइजोबियम. सॉरी तो जो लेग्यूम बैक्टीरिया हैं वो कैसी हैं? रॉड शेप्ड हैं. रॉड शेप है. राइजोबियम हैज रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स सच एज अल्फाल्फा. तो लेग्यूम्स में होती है राइजोबियम रॉड शेप बैक्टीरिया. लेग्यूम्स में होते हैं जैसे अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, lentils, garden pea, broad bean, clover beans, etc. The most common association on roots is of nodules. Most common association क्या है? Roots of nodules. Most common association क्या है? Of roots is as nodules. These nodules are small outgrowths on the roots. Small outgrowths are the microbes. The microbe Frankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants. Example, ulnus. Both rhizobium and Frankia are free living in soil but is symbiotic and fix atmospheric nitrogen. So ये free living है, symbiotic है, fix atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen fix करते हैं, symbiotic है, free living है ना. Symbiotic, free living, atmospheric nitrogen fixation करते हैं. Atmospheric nitrogen fixation करते हैं. So atmospheric nitrogen fixation. Uproot any one plant of a common pulse. So एक pulse मतलब एक ना pulses का झाड़ उखाड़ लो आप. Just before flowering, you will see near spherical outgrowths on the roots. These are nodules. If you cut through them, you will notice that the central portion is red and pink. What makes the nodule pink? This is due to the presence of leg hemoglobin or leg hemoglobin, leguminous hemoglobin या leg hemoglobin. So we'll बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. दैट इज़ नोड्यूल फॉर्मेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. थैंक यू.